Thank you everyone for joining us. We'll start soon. We'll wait for just one more minute because participants are joining us. Okay, so good evening everyone and thank you all for joining us. So till now we've had 3 sessions and the response has been great for them, and I'm really grateful that all of you could join us. So I'll give just a quick brief what all we have discussed till now. So in our first session we had discussed about career planning and preparation strategies, and then in the second session we moved on to information relating to colleges, admissions, and other processes. And then after that we went on to cover issues faced during the journey of one's own career, and we tried to come up with specific clarities, and it was where we discussed about like different kind of things. And now in this session I think that you all would be interested. In this session we'll discuss about career in psychology by Ms. Nishtha Kungar, and we've also got a fifth session which is about career abroad. I'm sure that many of you would want to apply abroad, but the problem is that we think that it is very expensive, right? But we got it all covered because our speaker will give us ways in which it may not be that expensive, in which we'll try to be as economical as possible for all of you all. So thank you again for joining us. And if you got any question to ask, you can ask us in the chat window below, and you can personally message me as well. And I'm also sending the feedback form. I'm also sending the feedback form which you all can fill. This feedback form is for this session. You can also send us your questions if you have, or if you would like to send some suggestions at all what we should be doing in future. So all of those are welcome through this forum. And now I'll quickly move on to the next phase. In the next participant, I'll introduce our speaker, Ms. Nishtha Kungar. So I'll give her just a brief about who she is. So Nishtha Kungar is a progressive educator and has been associated with psychology background for last 10 years. She's a certified counselor from NCERT and Ministry of Social Justice and Empowerment. She has helped thousands of students to help them make suitable career choices. Her career guidance work involves orientation workshops for students and parents in scope of streams and current trends. She also conducts psychometric tests and also analysis of our interests, aptitude, and one-to-one counseling sessions. And she has also organized a lot of career fairs. She's a founder director of Jagriti Foundation and has been associated with this quite successfully. And she's conducted researches, and she's also presented papers and written articles in reputed organizations and newspapers. She has been awarded for her excellence as a counselor in Career Hackathon 2020, organized by National Career Counseling Network. So I welcome you, Ms. Nishtha. Thank you, Shubham. Thank you for these wonderful words which you have spoken for me. Till the time I'm speaking, you can share the PPT over here. Thank you all the audience for being here and being the audience for today's session that is basically on career in psychology, but we will be covering
and we'll be starting from career in humanities, and then we'll move forward to a specific career. Hopefully we will be covering lot many careers in the coming sessions. We will be covering careers related to you can say NDA, civil services, defense, career in BBA, career in chartered accountancy, career in all kind of commerce backgrounds, career in engineerings. We will divide all the headings that could be, you know, software, civil, all careers will be discussed with all of you one by one in the coming sessions. So today the topic is career in humanities. I'll try my level best to keep it short, crispy, and up to the mark specific. So if you have any questions related to anything, not only just humanities, we have started the series from here, but you can cover all type of questions. We'll try to take them up. Also, I would like to add one more thing before starting, that the next upcoming series that is tomorrow, that is career in abroad and educational opportunities, which will be covered by Mr. Priyank Sharma, who is a consultant in Educode Services, is an MPhil and PhD, and has worked with many people who wants to study abroad, and he has a very clear-cut information. I welcome you all today, and I hope you will join with the series tomorrow. So now coming back to my topic, that is career in psychology. Before that guys, I would like to tell you, अगर आप में से कोई 11th का है, 12th का है, या कोई टीचर्स हैं, तो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं हमें 11th में मिलता है. हम 10th के बाद 11th से स्टार्ट करते हैं विद वेरियस ऑप्शंस, जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज का बच्चा, साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा कोई भी ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है अगर आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है. इस सब्जेक्ट के अंदर 70 मार्क्स थ्योरी होती है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है. When I talk about 70 marks, थ्योरी के अंदर आपके 11th और 12th में प्रोजेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और 30 मार्क्स के अंदर आप एप्लीकेशन पार्ट वर्कआउट करते हैं जो सीबीएसई की तरफ से आपको आधारित है. So every child can go for this subject, and it's a very interesting subject. एक टाइम ऐसा था, I remember when there were children and they used to tell me, मैम साइकोलॉजी की स्पेलिंग S से स्टार्ट होती है या फिर C से होती है. So when this subject came into existence, so to be very honest, including me, I was also shocked when I took this subject after 12th, क्योंकि मेरे टाइम पे आज से 10 साल पहले ये सब्जेक्ट नहीं था स्कूल के अंदर. So this is actually an upcoming subject which is coming into existence. So guys, it's for everyone. कोई भी ये 11th 12th में ये सब्जेक्ट ले सकता है, वर्कआउट कर सकता है. First thing. Now if after 12th you have you have taken this subject and you felt कि CBSE में सब्जेक्ट लेने के बाद अब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम आता है जब आप लोगों को ये सब्जेक्ट लेने के बाद क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स हम हमारे यूनिवर्सिटीज काउंट नहीं करती कि ये तो जी आपका जैसे फिजिकल एजुकेशन है, आपका म्यूजिक है, आपका आर्ट्स है. बट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट हर जगह काउंट होता है. इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा कहीं नहीं है कि आप बोलोगे भाई ये सब्जेक्ट काउंटेबल नहीं है. दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच काउंटेबल, एंड यू विल सी कि कोई भी इसको डिनाई नहीं करेगा इस सब्जेक्ट को लेने से. सो फर्स्ट थिंग, ये ह्यूमैनिटीज में हम इंक्लूड जरूर करते हैं क्योंकि ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए मेन सब्जेक्ट्स में भी काउंटेबल होता है. कमिंग बैक टू अबाउट साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी, पहले तो मैं आपका एक भ्रम दूर करना चाहूंगी. बहुत बच्चे बोलते हैं व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड कि मैम हमारी शक्ल देख के बताना हम क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स देयर इन माय माइंड एंड व्हाट डू यू फील कि मैं किस तरीके का बच्चा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स. और ये धारणा बड़ों को भी होती है कि भाई ये तो दिमाग पढ़ लेते होंगे साइकोलॉजिस्ट. तो सी जब तक कहते हैं ना, जब तक हम एक चीज में एंटर नहीं करते तो हम लेमन तरीके से ही बात करते हैं या जितनी हमको नॉलेज होती है. सो इफ आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, आई विल श्योरली से कि आप माइंड के बारे में जरूर बात करते हैं, लेकिन आप बिहेवियर के बारे में, आप अपनी चलती हुई दुनिया के बारे में, आप हर चीज साइकोलॉजी में कवर करते हैं. सो साइकोलॉजी इज नॉट ओनली अ वन वे. ये जो माइंड के बारे में हम बात करते हैं, हम एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि क्लिनिकल ओरिएंटेड है. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि साइकोलॉजी सिर्फ एक जगह नहीं वर्कआउट करती. साइकोलॉजी आप देखेंगे आज हर क्षेत्र में वर्क कर रही है. कोविड-19 तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, जिसमें आप देखो कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हर जगह
हम देखें तो साइकोलॉजी काउंसलर्स, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हर जगह आपको इस टाइम पे मिलेंगे. सो इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड वर्ड, which I can say that's why I've started with psychology. Next slide, please. See, desirable qualification. So I have covered one thing कि आप 11वीं 12वीं में इस सब्जेक्ट को लीजिए. आप 12वीं के बाद ये आपका एक मेन सब्जेक्ट में काउंट होगा. जैसे ही आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, फिर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, आप इसके लिए आगे वर्कआउट करेंगे. कैसे? ऑब्वियसली आप कोई ना कोई कॉलेज चूज करेंगे. इसमें आप बैचलर्स कर सकते हैं. बैचलर्स देखिए, मैं 2 यूनिवर्सिटीज कवर कर रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली समझिएगा. क्वालिफिकेशन में अगर मैं बोलूं, आपने बैचलर्स करी, बैचलर्स बीए में भी होएगी, बैचलर्स बीएससी में भी होएगी. आई वुड लाइक टू ऐड अप हियर, हमारे इंडिया के अंदर ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, स्पेसिफिकली कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, जिसके अंदर ये बीएससी में आती है, जहाँ पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब बनी थी, एस्टैब्लिश हुई थी. सो अगर आप कैलकटा यूनिवर्सिटी में देखें तो ये बीएससी इन साइकोलॉजी है. लेकिन अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय में बात करूं तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स में इंक्लूड होती है. लेकिन ये ऑनर्स की डिग्री इसमें मिलती है. डीयू क्या करता है, डीयू इसके अंदर आपको रिसर्च साइकोलॉजी ऑनर्स साइकोलॉजी में कराता है, या बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में कराता है. वहां पे कम से कम आप देखेंगे कि 42-45 कॉलेजेस के अंदर ये डिग्री आपको अवेलेबल है. आप ये ग्रेजुएट कोर्स वहां से कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगी, यू कैन से इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर द गर्ल्स, कि गर्ल्स कॉलेजेस ज्यादा है, तो बैचलर्स गर्ल्स के लिए कॉलेजेस ज्यादा है, कोएड कॉलेजेस थोड़े से वहां पे कम है. लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, यू वोंट बिलीव. सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम गेटिंग मैसेज कि प्लीज ऐड द पीपल, सो प्लीज add people. Okay, now coming back to the desirable qualification. देखिए, जब आप इसके अंदर बात करते हैं बैचलर्स की, तो बैचलर्स के 3 साल का ये प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप, अगर हम साइकोलॉजी के बारे में बात करें, तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे एवरीवन, कि आप हर ब्रांच के बारे में पढ़ोगे. आप हर थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, आप कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ोगे, आप एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ोगे. इतनी चीजें हैं हमारे पास कि यू विल स्टडी अबाउट एवरीथिंग. If I talk now, there is semester system everywhere. The yearly system is over. So what you will see in semester system, कि वो आप देखिए 3 साल जो है आपके 6 भागों में विभाजित हैं. जो आप एक सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं वो आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे. लेकिन यूनिवर्सिटीज बहुत ट्राई कर रही हैं कि उसके अंदर इस तरीके से कवर किया जाए कि हर कंटेंट, हर कॉन्सेप्ट के बारे में साइकोलॉजी की आपको इन्फॉर्मेशन मिले. सो बैचलर्स इज लाइक first step towards something you want to attain, but I would like to tell you this is not the end. बच्चे बहुत ऐसे सोचते हैं कि मैम हमने बैचलर साइकोलॉजी में कर ली, अब हमें मास्टर्स भी उसी में करनी चाहिए, या मेरा मूड ना अब पॉल साइंस की तरफ जा रहा है, या फिर मेरा मूड इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है. सी, यू हैव बैकअप प्लान्स. ऐसा कुछ नहीं, आप बदल नहीं सकते. या कुछ बच्चे बीए पास करके सोचते हैं मास्टर साइकोलॉजी में करना चाहते हैं, तो भी ऑप्शन आपके लिए ओपन है. आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ऑप्शन आपके लिए ओपन नहीं है. These options are open for you. It's not like this कि बैचलर्स के बाद आपको उसी में वर्कआउट करना है. It is never like this. So we do bachelors, we do masters. इसके बाद आप एमफिल के लिए जा सकते हैं. आप मास्टर्स सोशल वर्क में कर सकते हैं, एमफिल सोशल वर्क में कर सकते हैं, एमफिल आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में कर सकते हैं, एमफिल आप एमए आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर सकते हैं. विभाजित है बहुत चीजें, बहुत ब्रांचेस है जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये पूरा एक तरीका है कि बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी तक आप जा सकते हैं और आप इसमें वर्क कर सकते हैं. देखिए, अब ब्रांचेस की मैं बात करूं, आई हैव मेंशन्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, बट मैं आपको कुछ जो कि बहुत फेमस है उसके बारे में बात करूंगी. देखिए, आप रिसर्च में जा सकते हैं. रिसर्च के लिए हमारे बहुत ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं. आई विल टेल द नेम्स इन द कमिंग स्लाइड्स. यू विल सी. रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं. बहुत हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, even government organizations follow so many researches, and you have lot many options if you go through into psychology. Second thing, clinical psychology, एक ऐसा माध्यम जहां आप साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलके साइकोलॉजी के अंदर जाते हैं. आप उसमें बेसिकली क्या करते हैं, आपको हर तरीके की देखिए, साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, दवाई देता है, मेडिकेशन. लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है. जैसे आपके पास रेडियोलॉजिस्ट होते हैं कि वो कहते हैं जी पहले जाइए, अपना सीटी स्कैन कराइए, एमआरआई कराइए, असेसमेंट कराइए, और फिर हमारे पास वापस आइए. उस तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं
और फिर वो आपकी रिपोर्ट साइकाट्रिस्ट के पास जाती है एंड देन दे डायग्नोज कि प्रॉब्लम क्या है। उस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आजकल कंपनीज आप जितनी भी देखिए सब रिक्रूट कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, जिसके अंदर वो आपके एप्टीट्यूड, आपकी असेसमेंट्स, आपका जॉब परफॉर्मेंस, मोटिवेशनल लेवल, एब्सेंटिज्म रिस्क, they assess you in all these things and then they give you information कि एम्प्लॉय असल में कितना इनपुट दे सकता है एक कंपनी को। सो इस तरीके से सारा वर्कआउट होता है। अगर इसके अलावा देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बहुत वर्क कर रहे हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट आप देखिए 1992 में 1996 में रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी। अब फिर से हमारे साइकोलॉजिस्ट की नीड पड़ रही है। जो हम पीजीटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दे आर ऑल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। फोर्थ आई विल कवर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आप देख ही रहे हैं एमएचआरडी, आपका एनसीईआरटी, हर तरीके के यूजीसी, हर तरीके के लोग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हर तरीके की आपको फ्री काउंसलिंग सर्विसेज मिल रही हैं, जिनकी गाइडलाइंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन कौन से काउंसलर कौन कौन से एरिया में प्रोवाइडेड है। हर कॉलेज दे रहा है कोविड-19 के अंदर। तो आप देखिए काउंसलिंग का कितना बड़ा योगदान हमारी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इज अनदर फील्ड व्हिच इज वर्किंग विद दैट। आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड पब्लिक स्पीकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ना, बच्चों का आजकल इतना मन, इवन इंक्लूड अस आल्सो, मोटिवेशनल स्पीचेस स्पीकर्स हमारे इतने सारे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पे ही तो काम करते हैं। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आप इसके साथ देखेंगे कि आप इस पे बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। इंक्लूडिंग दिस आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड टू मोर अनदर फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी व्हिच आई थिंक इज वर्किंग मार्वेलस। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में बच्चों, तो आप एमबीए करते हो, आप एमए साइकोलॉजी भी कर लो, आपका एड ऑन हो जाता है। So those who fit for MBA, they also get a chance over others if you go for MA organizational psychology. और हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं, वो हर साल प्लेसमेंट्स के लिए प्लेसमेंट सेल के थ्रू बहुत कंपनीज प्रोवाइड करते हैं एंड दे ऑफर वेरी गुड सैलरीज टू पीपल, दी स्टार्टिंग वन प्लेसमेंट सेल्स के अंदर। सो नेक्स्ट आई वुड कवर फोर्थ वन, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। देखिए ऐसा बहुत होता है कि आपने पहले एक धारणा थी, मेंटल असाइलम्स बने हुए थे, ऐसी चीजें बनी हुई थी, राइट? देखिए आपको समस्या हुई, आप ऐसे सेंटर के अंदर गए, उन सेंटर्स के अंदर जाके प्लीज मूव बैक टू द कॉलेज साइड प्लीज, कॉलेज स्लाइड। सो आप ऐसी ऐसी जगहों पे गए और वहां पे जाकर आप ठीक होते हैं और आप वापस अपनी यू मूव बैक टू द सोसाइटी। सो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप वापस आते हैं सोसाइटी के अंदर, तो लोग को एक स्टिग्मा होता है, एक धारणा होती है, यार ये तो ऐसी जगह से आया है, इसको तो हमें पता नहीं है ठीक भी है या इसको इंक्लूड करना नहीं करना। देखिए वहां पर आपके कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। जब आप रिकवर करके वापस आ रहे हो ना, तो आपको सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको सोसाइटी को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट इसी चीज पे वर्क करते हैं, फॉलो अप रखते हैं, रिकवरी रखते हैं, और ताकि प्रॉब्लम कुड बी विद एनीबॉडी। मैं आपको सच्ची बताऊं, एंड आई दिस इज अ स्टडी व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड, कि देखिए कुछ समस्याएं तो हमारे जीवन में हमारे साथ चली रही है, वी ऑल आर फेसिंग वन थिंग और द अदर, एंड वी आर हैविंग सम सिम्टम्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी जो हम 4 Ds में कवर करते हैं। आई वॉन्ट गो टू देयर, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेविएंस फ्रॉम नॉर्मैलिटी, राइट, एंड डेविएशन। सो अगर आप देखो तो psychologists work on that. Now coming back to the another fifth one which I would cover, special educational services. देखिए हम लोग स्पेशल एजुकेटर्स भी बनते हैं, जिसमें हम बच्चों को, आजकल आप देख रहे हैं कितने स्कूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है, सबको कोई ना कोई समस्या, डिसलेक्सिक बच्चा है, एलडी बच्चा है, एमआर बच्चा है, एएसडी बच्चा है, ठीक है, पार्किंसन डिसीजेस है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, तो सबको एक एड ऑन फैसिलिटी चाहिए कि वो भी दुनिया समाज के अंदर पीछे ना जाए। तो ऐसे लोगों को भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। दैट इज अ रूल ऑफ स्पेशल educational services which also work in one of the psychological field. So what I'm trying to tell you, you have lot of vast areas where you can work, where you can
सर्टेन। सिर्फ आप एक MBA के बच्चे हो तो भी आप ये फील्ड में वर्क कर सकते हो, अगर आप एक लॉ के बच्चे हो, फोरेंसिक क्रिमिनल, तो भी आप काम कर सकते हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट लाइन से हो तो भी आप कंज्यूमर साइकोलॉजी, मीडिया, मास रिलेशन से एडवर्टीजमेंट्स के अंदर काम कर सकते हो। ऑडियंस कैटर कैसे करोगे? मुझे एक ऐड बनानी है, एक ऐड के अंदर मुझे एक सोप की ऐड पे एडवर्टीजमेंट करनी है और मुझे लगता है मुझे वो ऐड यूपी में वर्कआउट करनी है, तो मैं वही के किसी प्रोफेशनल को पकड़ूंगी ना कि यू डू दैट, और उससे पब्लिक ज्यादा केटर होगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, साइकोलॉजी इज वेरी वास्ट and has a lot of scope in whatever field you talk about. I have all the answers with that, right? Coming to the colleges देखिए हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, वो कोई भी फील्ड हो, आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तीनों ही अपने अपने लेवल पे कॉलेजेस पे वर्क कर रहे हैं और साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे यूजीसी आधारित है, हमारे यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं आपके केंद्र सरकार द्वारा आधारित होते हैं, जिसके अंदर ये कॉलेजेस जब चलाए जाते हैं, फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट थिंग व्हिच आई पर्सनली फील कि फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखो ना तो बहुत मिनिमल अमाउंट में काम करता है। चाहे DU का ही देख लो आप कि उसमें क्या फीस स्ट्रक्चर आप ऑप्ट करते हो, सबसे पहले। सेकंड इज education, the syllabus, the structure which they formulate, that is totally different and try to cover everything. Then third is your staff selection बहुत है। fourth is your exposure, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस पे काम कर रखा है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंगली आती हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करूं तो आपकी सबसे बड़ी टॉप मोस्ट चलती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो सब सोचते हैं कि हमारा वी गेट दी ऑप्शन ओवर देयर। देन इन स्टेट गवर्नमेंट इफ आई टॉक, आप किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करिए, आपको ये कोर्स हर जगह मिलेगा। जैसे हरियाणा में देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, पंजाब में देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली के अंदर देखिए तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और DU के प्रोफेसर्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया था, तो अब आपके अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये कोर्स चालू है। इस तरीके से आप हैदराबाद जाइए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, आप जिस स्टेट की हम बात करेंगे आपको ये कोर्स बहुत आसानी से मिलेगा। हाँ, ये चेंज आप जरूर देखेंगे कि कोई किसी चीज में स्पेसिफिकेशन दे रहा है, तो कोई एजुकेशनल में दे रहा है, कोई काउंसलिंग में दे रहा है, कोई क्लिनिकल में दे रहा है, सो दैट मैटर्स। प्राइवेट में हम बात करें तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है। प्राइवेट में भी MIT यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छे से कोर्स चला रही है, राइट, जिसके बारे में हम आई थिंक कुछ ना कुछ वी रीड लॉट मेनी थिंग्स। इफ यू टॉक अबाउट क्राइस्ट के अंदर भी एक कोर्स है, देयर आर लॉट ऑफ पर you can see lot of things over there, right? Now coming another thing, another slide please. थैंक यू। जॉब्स, आई वुड लाइक टू एड अप हियर, जब मैं कॉलेजेस की बात आपको बता रही हूँ, बैचलर्स के अंदर तो देखिए CBSE की परसेंटेज से भी एडमिशन हो रहा है। कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको क्या करती हैं, इंक्लूड करती हैं कॉलेजेस में एंट्रेंस लेकर, बट बहुत कम है, बहुत ही कम। ये चीज आती है मास्टर्स के अंदर, जहाँ पे आप देखेंगे कि पीपल एड यू विद द एंट्रेंस, जिसके अंदर देखिए अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का बताऊं, हमारे पास 2 कैंपसेस है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। इफ यू सी there are 114 seats in total where you include general, SC, ST, OBC overall there, और हमारे नॉर्थ साउथ कैंपस के अंदर भी सीट्स हैं जो कि इससे थोड़ी आधी हैं। सो यू सी 150 बच्चा ही आप मास्टर्स में केटर कर रहे हैं। उसके बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटीज पे आ जाइए, वो भी मास्टर्स करा रहे हैं, वो आपके बैचलर्स की जो परसेंटेज होती है उसके बेस पे कट ऑफ निकलती है, उस बेस पे आपको लेते हैं। जॉब्स के बारे में मैं बात करूं, देखिए आपके पास बहुत सेक्टर्स हैं, इतने सेक्टर्स हैं, यू वॉन्ट बिलीव। आप हॉस्पिटल सेटिंग में जा सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के द्वारा, जिसमें आपको MPhil करना जरूरी है, क्योंकि आपको एक RCI नंबर की नीड पड़ेगी जो आपको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, UK हैव टू केटर MBA and MA in organizational psychology for that if you want to be in organizational field. आप MA काउंसलिंग या MA नॉर्मल साइकोलॉजी कर स्कूल्स में लग सकते हैं, एज काउंसलर्स लग सकते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट लग सकते हैं। उसके साथ आप B.Ed कर लीजिए तो आप PGT साइकोलॉजी के लिए भी जा सकते हैं। आप इसके साथ अगर MA साइकोलॉजी या आप आगे स्पेशल एजुकेशन में कोर्स कर लीजिए तो आप उस स्पेशल एजुकेटर के लिए भी अपने आप को एफिलिएट करा सकते हैं। आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, DRDO
आप दिल्ली अगर एंटर करें, कश्मीरी गेट के पास सबसे बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपमेंट और डिफेंस का, जो कि इतने कोर्सेज देता है। अभी भी बहुत वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, मेरिट की यूनिवर्सिटी है, हिसार की यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, लॉट मेनी ऑप्शंस आर देयर इफ यू सी फॉर स्टडीज एज वेल एज जॉब्स। आप किसी सेक्टर में बात करिए, साइकोलॉजी अवेलेबल है। लॉ के लिए जा रहे हैं आप, फोरेंसिक क्रिमिनल साइकोलॉजी में जा सकते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत मानी हुई है। आप देखिए सारे जब भी किसी के लिए हमें असेसमेंट करानी होती है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, कुछ भी है, तो सब गुजरात ही रेफर किए जाते हैं। वहाँ पे फोरेंसिक का एमफिल बहुत मान्यता प्राप्त है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऑप्शन टॉक अबाउट इन जॉब सेक्टर, एंड अब तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वैसे ही इतने ऑप्शंस निकल रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सैलरी, देखिए ये एक बहुत अगर मैं बोलूँ इंडिविजुअल लेवल पे भी मैटर करता है, क्योंकि इस पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए जब आप ऐसी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, यू नीड टू बी एम्पैथेटिक। व्हेन आई से बीइंग एम्पैथेटिक, आई एम सेइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड समवन्स by putting yourself into that shoes. आपको sympathetic नहीं होना, आपको empathetic होना है। अगर मैं किसी को दिलासा देने बैठ गई ना, that won't work. So you need to be empathetic. पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, दर्शाती है कि किस तरीके से आप चीजों को केटर कर रहे हैं, राइट। थर्ड थिंग आई विल से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। आपको हर चीज वेलकम करनी है। आपको यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड। फोर्थ से कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि इट इज नॉट टू बी वन वे, रादर आप फीडबैक ले भी पा रहे हैं, पैराफ्रेज भी कर पा रहे हैं, स्टेटमेंट्स को ढंग से समझ भी पा रहे हैं, स्टॉपेज भी लगा रहे हैं, एंड ऑथेंटिकेटेड भी है। जो बोल रहे हैं वो लागू भी कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे वर्क कर कर अगर हम सैलरी के बारे में बात करें, तो आपको ग्रेड स्केल भी, अब गवर्नमेंट में जाए तो ग्रेड स्केल से भी शुरुआत है। आप 30,000, 40,000, 50,000 लैक्स में भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने खुद के पर्सनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर सकते हैं, इसके अंदर अपने सेंटर्स भी कर सकते हैं और आप नॉर्मली वर्क भी कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव। स्टार्टिंग जरूर इंसान को एक कदम रखना पड़ता है, लेकिन यू हैव लॉट मच स्कोप। और इसमें सच बताऊं तो हर इंसान को होता है अपनी इमेज क्रिएट करने का। यू कैन क्रिएट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज in front of the public if you choose this field, not only in clinical but in any of the field or the branch you like. So I hope सैलरी के बारे में तो देखिए वर्ल्ड वाइड ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत हैं। आप सर्टिफिकेशंस ऐड अप करते जाइए, आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिलता जाएगा। सो यू हैव लैक्स ऑफ अमाउंट यू कैन cater. So I hope we'll able to meet as many psychologists we can in the coming years, in the coming months, in the coming days. This all I have to say about when I talk about career in psychology. Next, please. देखिए मैंने एक छोटी सी, इसको आप जूम कर सकते हैं शुभम, आप दुनिया को अच्छे से दिखा सकते हैं। दोज हु वांट टू डू जूम दे कैन डू। देखिए इसके अंदर मैंने करियर एक क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक शॉर्ट सा बना के आपको डिस्क्राइब किया है। एक ब्रांच को सिर्फ उठाया, ऐसा नहीं है कि मेरी फेवरेट ब्रांच है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मैंने उठाया जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये चीजें हम कवर करते हैं। सी फर्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। इसमें आप करते क्या क्या हो? आप असेसमेंट्स करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं पेशेंट्स का, केस स्टडीज क्रिएट करते हैं, हॉस्पिटल का सब काम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने मेंशन करी है। देखिए आप एमफिल करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जो कि 2 साल की पूरी प्रैक्टिकल होती है। आप फिर प्रैक्टिस में जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। इबास हमारा बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलिड साइंसेज, जो कि दिलशाद गार्डन दिल्ली के अंदर है। इसके साथ साथ आपका रांची का इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री भी बहुत फेमस है। और आपको ना बाद में एक लाइसेंस मिल जाता है, जो कि हमारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, यू गेट द लाइसेंस एंड देन यू कैन वर्क, राइट। आरसीए नंबर प्रोवाइड हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए वो भी मैंने मेंशन किया है। थोड़ा नीचे लाइए प्लीज। मोड ऑफ एंट्री में आप बात करिए तो आप एमफिल या पीएचडी करके, इसमें एम्स भी पीएचडी कराता है। इसके अंदर बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एक एक करके क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको बता पाऊंगी इसके अंदर, राइट। सो दिस इज बेसिकली यू हैव लॉट मेनी ऑप्शंस। इफ यू सी यू कैन केटर द इंफॉर्मेशन। वर्क सेटिंग्स है हमारे पास हॉस्पिटल है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, रिसर्चर है, मेंटल हेल्थ सेंटर्स है, और आप बहुत इंफॉर्मेशन केटर कर सकते हैं rca.com पे जाकर भी, ibas.delhi.government.in पे जाकर भी, और targetstudy.com पे भी।
जाएगी। आपको ये मैंने 3-4 ऐसे .coms डाले थे जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कमिंग टू अनदर स्लाइड प्लीज। So question and answers, I give this opportunity to my very own moderator, Mr. Shubham Rapadia, who can come back with the questions. If people have, they can ask me and I'll be happy enough to answer them with whatever knowledge I have. Yes, please, Shubham. Yeah, sure, ma'am. Thank you so much for the information on psychology, because I think that when I was in class 12th, I too was very confused, like as to what all options I have, because psychology was one of my subjects. So I think that Okay. your slide like really cleared my doubts and like as to what all opportunities I have. Now certain questions were I would asked. like to add up here. I would Yeah, like to sure, add up ma'am. here. I am blessed to have a student like you who was a district topper of humanities and scored the highest in psychology as well. Thank Yeah. you so much, So ma'am. back to the questions. Yeah, sure, ma'am. Certain questions were asked. So like I'll name those questions now. Yes. Number one is that can you suggest me best universities college for MA in clinical and counseling psychology? देखिए, आप अगर एमए इन क्लिनिकल और काउंसलिंग की सिर्फ बात कर रहे हो ना, और आप बेस्ट के बारे में भी बात कर रहे हो, तो देखो बेस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपने ऑप्शंस रखने चाहिए। लेकिन आप अगर क्लिनिकल और काउंसलिंग के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि मास्टर्स ना बेसिकली बहुत जगहों पे साइकोलॉजी में होती है। उसके बाद हमको एमफिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमफिल से ही आप क्लिनिकल सेटिंग में जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी पूरा एक करियर का पोस्टर दिखाया, इंफॉर्मेशन कैटर करी, तो अगर आप एमफिल इन क्लिनिकल करेंगे तभी आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको आरसीआई नंबर मिलेगा, जो नंबर आपको आधारित करेगा कि आपने इस फील्ड के अंदर मास्टरी प्राप्त करी है। सो विदाउट एमफिल गाइस यू कांट गो फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, मार्क माय वर्ड्स। एंड एमए आप कैसे करेंगे? एमए आप एमए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत यूनिवर्सिटीज है, द वे आई हैव स्पोकन, डीयू है, पीयू है, केयू है, उस्मानिया है। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलो तुम्हें हर जगह ये ऑप्शन मिलेगा। बस एक नेट पे एमए इन साइकोलॉजी लिखो, कॉलेजेस आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, प्राइवेट्स की भी लिस्ट मिल जाएगी। बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि कोशिश करो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अम्बेडकर यूनिवर्सिटी साइकोथेरेपी में मार्वलस काम कर रही है, आप क्लियर कर पाओ उसको, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ो। और क्लियर करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं होता तो फिर अपना एक्सपोजर गेन करो, स्टेज पे वर्क करो। स्टेट नहीं होता तो प्राइवेट करो, लेकिन उसके साथ ट्रेनिंग्स करो। इंस्टीट्यूशंस ऐसे लो जो आपको ट्रेनिंग दे सके, आप सेल्फ एक्सपोजर गेन कर सको। जितना ज्यादा इसमें रहोगे, खुद को अपने आप को रखोगे, उतना ज्यादा ये फीलिंग आप खुद को यू कैन से इंजॉय करोगे। वो फील तुमको छुएगी और तुम बहुत अच्छा निकल के आ पाओगे। सो यू हैव टू गो फॉर एमफिल। एमफिल के बारे में मैं बताना चाहूंगी। एमफिल करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत कम सीट्स होती हैं। उसके लिए एक पेपर होता है, उसकी आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, जिस तैयारी के अंदर प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस होता है। वो आपकी साइकोलॉजी की नॉलेज देखते हैं, उस पर काम करते हैं। तो आप एमफिल करे बिना नहीं जा सकते। भास उसमें से एक है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। रांची का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्री इसमें से एक है। एमआईटी फिर आपके लिए ऑप्शंस है। एमआईटी की 3 ब्रांचेस के अंदर ये चल रहा है। एसजीटी यूनिवर्सिटी है। lot many universities are there. I'm just focusing on 3-4, but if you need the details, I'll mail you that on by my ID. They'll forward you about all kind of information you need, and I'm just giving an overview about it. So you have to clear the entrance. Without that you can't move for clinical setting or counseling, right? Next please. Yeah, sure, ma'am. Thank you so much for your answer, ma'am. Our next question is MA psychology from IGNOU good? IGNOU. इग्नू, देखिए ये एक ओपन यूनिवर्सिटी और आप सब जानते हैं कि डिस्टेंस मोड में काम कराती है। अगर आप एमए साइकोलॉजी इसमें से करने का सोच रहे हो, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि देखो, अब कारण तो किसी के कुछ भी हो सकते हैं। कुछ आर्थिक स्थिति हो सकती है, या उसके साथ साथ हमारी कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक ऑप्शन में ले रहे हैं। हम एक अपग्रेडेशन के लिए भी ले सकते हैं, एड ऑन ले सकते हैं कि मैं एमए साइकोलॉजी करना चाहता हूँ बट मैं वर्किंग हूँ, इसलिए भी आई वांट टू डू, और वो एड ऑन हो। देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पूछे कि अच्छा ऑप्शन है, देखिए अच्छा ऑप्शन तो रेगुलर मोड है। लेकिन आप अपग्रेडेशन के लिए बात करें तो आप करिए, लेकिन आप इग्नू से अगर कर रहे हैं तो उसके साथ फिर मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि आप बहुत सारे एनजीओज, सोशल वर्क, साइकोलॉजी ओरिएंटेड वर्क, इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आप डिस्टेंस मोड से कर रहे हो,
ज्वाइन करो, फील्ड विजिट करो, फील्ड वर्क करो, ताकि आप उसकी चीजें भी अपने सीवी में कैटर कर सके और वो आपको हेल्प कर सके। क्योंकि सिर्फ मास्टर्स भी इग्नू से कर कर एक एड ऑन तो प्रेफर करेंगे ना आप। देखिए जहाँ 99 वाला देखेंगे और 95 वाला देखेंगे, हर कोई एक बार 99 वाले को चूज करता है ना, तो ये इस तरीके की फ्लक्चुएशन है। अगर आप उसके साथ और चीजें अपने साथ संपूर्ण कर लें तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैव माय सीनियर्स हु हैव डन इट फ्रॉम इग्नू, बट विद दैट दे हैव डन लॉट मेनी थिंग्स, ऐड ऑन करा उन्होंने, दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ, दे आर इन रेप्यूटेड स्कूल्स राइट नाउ। So I hope I have tried my best to give you the answer to it. Next, please. Yeah, sure, ma'am. Thank you so much again. Our next question is that, ma'am, what is the difference between neuropsychologist and neuroscientist? And yeah, Neuropsychology, huh. yeah. Yeah, So yeah. Tell me anything else. yeah. So this is the first part of the question. The second part of the question is that, do neuropsychologists have to choose BSc psychology? Do neuro. See, basic तो आपका साइकोलॉजी से शुरू होगा। प्रेफर करिए बीएससी साइकोलॉजी मिले, क्योंकि न्यूरो साइकोलॉजी तो बहुत कम आपको मिलेगी यहाँ के कॉलेजेस के अंदर जो हमारे इंडिया के अंदर है। फिर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि अब आप एक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हो। देखो मास्टर्स के बाद आप आगे रुक नहीं सकते, इसके अंदर आपको आगे करना पड़ेगा, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आप एक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपको इसके अंदर एमफिल के लिए भी जाना पड़ेगा, पीएचडी के लिए भी जाना पड़ेगा, और जाइए तो बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो कि न्यूरो साइकोलॉजी प्रेफर करें या न्यूरो साइंटिस्ट, कौन सी बेटर है? देखो दोनों अपने आप में अलग हैं। न्यूरो साइकोलॉजी की आप बात करो तो आप न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे काम करोगे कि आपके नर्वस सिस्टम का साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ क्या एड ऑन है। जब आप न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आप रिसर्च पर्पस के बारे में बात कर रहे हो कि जितनी भी आपकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो किस तरीके से वर्क कर रही है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ one of the factor psychology, right? So both are different. One is more oriented towards research and other is more oriented towards psychology in context of न्यूरो, जो कि एम्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी। एम्स के अंदर पीएचडी इन न्यूरो साइकोलॉजी और न्यूरो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है अलग से। जितने भी आपके ब्रेन इंजरी, ट्रोमेटिक इंजरीज या ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं वो वहां पे जाकर अपनी पहले डायग्नोसिस कराते हैं, उसके बाद उनको हर जगह प्रेफर किया जाता है। डॉक्टर आशिमा नेहरा इज द हेड of that that department and she is handling it. वो PhD भी कराती हैं न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर, उनके अंदर ही लोग करते हैं। सो न्यूरो साइकोलॉजी इज लाइक दिस एंड न्यूरो साइंटिस्ट इज लाइक दिस। DRDO है आपका, या फिर आप गुजरात यूनिवर्सिटी देखो, बहुत बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो न्यूरो साइंटिस्ट तो आपका बिल्कुल एक अलग एड ऑन पड़ जाएगा विद न्यूरो साइकोलॉजी। So this is the answer. Next, please. Yeah, sure, ma'am. Our next question is that, ma'am, could you please give us a brief about clinical psychology and what is the best college for clinical psychology? फिर ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप ये पूरा सुन रहे हैं ना वेबिनार आज का, सो आपने पूछा कि कैन यू जस्ट रिपीट क्लिनिकल साइकोलॉजी के कॉलेजेस बताने हैं? Yes, ma'am, and a brief about clinical psychology, both. Okay, so brief, if I have to speak about clinical psychology, that's why I shared that poster. If you see that poster again, you will find what I am trying to cover over there. Clinical psychologist पूर्ण रूप में हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेटिंग्स, क्लिनिक्स में आप काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आप साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलकर काम करेंगे, या आप अपना अलग से सेटिंग भी चला सकते हैं। आप करते क्या है बेसिकली, आप असेसमेंट ही करते हैं। आपके पास एक पेशेंट आया, पेशेंट ने आपको बोला, आपको साइकियाट्रिस्ट ने वो पेशेंट रेफर किया कि इसकी असेसमेंट करके बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप, वो एक बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, ठीक है। आपने उसकी असेसमेंट करी कि उसको डिस्लेक्सिया है, जो सारे जमीन पर प्रदर्शनी को था। आपने उसकी असेसमेंट करी, आपने करके बताया विद साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। बाय दैट यू गेट टू नो दैट द चाइल्ड इज हैविंग डिस्लेक्सिया, सो यू रेफर दैट चाइल्ड अगेन टू द डॉक्टर। और आपने उसमें नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड्स बता दिए कि जी दवाई के बिना ये थेरेपीज, ये काम आप कर सकते हैं जिससे बच्चे को मदद हो। तो ये करने के बाद आपने बच्चे को दोबारा से साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर दिया। तो साइकियाट्रिस्ट उसके साथ अपना जो ट्रीटमेंट अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं कि कोई ब्रेन इंजरी भी हो या कुछ भी, सो दे कैन डू दैट। एंड उसके साथ आपका काम फॉलो अप्स, थोड़े थोड़े टाइम बाद टेस्टिंग्स आप करते रहेंगे। सो ओवरऑल आपका काम साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स, क्लिनिकल असेसमेंट्स, थेरेपीज देना है with the
इन दी क्लिनिकल सेटिंग्स। और आप पूछ रहे हैं कि इसके कॉलेजेस, आपको मास्टर्स पहले करनी पड़ेगी, बैचलर्स कर रखी है तो बहुत ही बढ़िया है, मास्टर्स करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एमफिल करनी पड़ेगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। रिकमेंडेशन, हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि आपको एक नंबर मिलेगा, जिस तरीके से एमबीबीएस डॉक्टर को मिलता है, आपको भी एक आरसीआई नंबर मिलेगा, और उसके बिना आप क्लिनिकल सेटिंग में नहीं बैठ सकते। सो एमफिल आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। हर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने पेपर है, सो यू हैव टू कवर दैट, यू हैव टू डू दैट। So this is all about clinical psychology. Thank Next, you please. so, thank you so much, ma'am, again. So our next question is that I have done my MBA in HR and marketing, and I'm currently pursuing MA in counseling psychology through IGNOU. I would like to know what further certifications I can do to build my competencies in counseling psychology. In counseling psychology? Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. In counseling psychology. See, you are a person of HR marketing, and you are doing masters from IGNOU in organizational, right? In counseling And you want psychology. to know more about how, in? I'll repeat the question again, ma'am. I have done my Yeah. MBA Please in repeat the question. yeah, sure, ma'am. I have done my MBA in HR and marketing, and I'm currently pursuing MA in counseling Okay. psychology through IGNOU. So the person is doing counseling psychology from IGNOU right now and has done MBA in HR and marketing in the past. So like the person would like to Okay. know what all skills does the person require to progress further in counseling psychology as he or she is doing the course from IGNOU. देखिए, इसके साथ अब आप ना और सर्टिफिकेशन लीजिए। जैसे अगर आप इग्नू का ही पेपर खोलो ना, आपको उसमें ना छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस मिलेगी। सर्टिफिकेशंस बहुत है उसके अंदर। अब मैं आपको दो तीन बताऊं, उसके अंदर ना डिसीजन मेकिंग, लाइफ स्किल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट मार्केटिंग, इतने कोर्सेज हैं जो सर्टिफिकेशंस में प्रोवाइडेड है। गो फॉर दैट आल्सो, दैट इज एन एडन क्रेडिट बनेगा इससे आपका। उसको करने में ना आपको वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे काम करेंगे, डू दैट। फिर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है आपके पास दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो अब इतने कोर्सेज आपको दे रहा है, अब तो ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे वो ज्वाइन करो। उसके अंदर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। क्यों? अब आप दो तरीके के काम कर रहे हो। देखो, आपने मार्केटिंग करी है एमबीए के अंदर, एचआर के अंदर, ठीक है। आप काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, आपके लिए दो ऑप्शंस खुल रहे हैं। आप काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए जाओगे या आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए जाओगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए जाओगे तो देखो, आप मार्केटिंग सेक्टर्स, जॉब रिक्रूटमेंट, जॉब प्लेसमेंट सेल्स, इनके अंदर एनरोल करोगे खुद को, और बहुत कंपनीज ले रही हैं। आई विल शेयर द लिस्ट इफ यू वांट कि कौन सी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट और इन सबको कवर अप कर रही हैं आज के टाइम में। बहुत प्लेसमेंट्स हो रही है। अगर काउंसलिंग के लिए जाओगे तो भी आपके लिए देखो दोनों अलग चीजें हैं। ऑर्गेनाइजेशनल के लिए जाओगे तो उस तरीके की सर्टिफाइड कोर्सेज करो। कोर्सेरा करके एक ऑनलाइन साइट है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके बाद उसमें से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज उठा लीजिए, एंड दे आर फ्रॉम अब्रॉड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, यू कैन डू दैट इफ यू वांट। कुछ नॉर्मल 1000-2000 का फाइनेंस मतलब पेमेंट होता है उसका। फ्री करने का कोई बेनिफिट नहीं है, फ्री आप सिर्फ एक समझने के लिए कर लीजिए कि किस तरीके का चलता है, उसके बाद आप वो करो, दैट विल आल्सो हेल्प यू। उसके साथ फील्ड सेटिंग्स में रुको। इतनी हमारे पास आजकल ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर आप काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो। गूंज है हमारे पास, आई वॉलंटियर है, ये सारी वेबसाइट्स क्या कर रही है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस एनरोल कर लेती हैं और आपको देती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। वो आपको कुछ एरियाज दे देंगे जिसमें जाके आपको बच्चों को पढ़ाना है, काउंसलिंग करनी है, दैट इज आल्सो एन ऑर्डर, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। प्रैक्टिकल नॉलेज लो, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं कर रहे ना तो फिर कोई इग्नू से करने का बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि एट द एंड पीपल वुड लाइक टू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और द नॉलेज यू हैव गेटेड। एवरीबॉडी कैन डू थ्योरेटिकल, और हमारी फील्ड में इफ यू सी साइकोलॉजी में बेसिकली कोई भी फील्ड हो, थ्योरेटिकल ना हर टाइम काम नहीं आता, कोई भी फील्ड हो वैसे तो। लेकिन इस फील्ड में तो आप ऐसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जिस एम्प्लॉय पे आप काम कर रहे हो ना, that will be evaluated in one go. So you need to understand this concept. Yeah, sure, ma'am. So what do you, Shubham? Yeah, sure, ma'am. Our next question is that is clinical psychology better in India or abroad? Okay, first of all, are you done with masters? अब अब्रॉड की अच्छी है या यहाँ की अच्छी है? देखिए, नॉलेज यहाँ लाना है तो पहले तो एक चीज समझिए, थोड़ा लेबोरियस होना जरूरी है, सीट्स बहुत कम है। एमफिल अगर करनी है तो आपको देखो, I can't categorize whether abroad is good or your institution. I'm talking about the personal characteristics. Are you very much equipped with the field? Are you really ready to serve yourself to the society? Are you really interested in doing for the public?
Are you really interested to serve the clinical setting? If yes, then my dear child, both the things are correct. क्योंकि इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप बाहर से करके आते हो और वापस मूड बनाते हो कि जी मेरे को तो ना इंडिया आना है, पहले तो पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ऐसी हमारी यूएसए कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे विश्व में, अगर आपने एक यूएसए से कर लिया डिग्री और आप फिर माइंड लगा रहे हैं जी मैं तो यूके जाके प्रैक्टिस कर लूं, तो आपकी डिग्री वैल्यूबल या मानी नहीं जाएगी, वहां पे प्रमाणित नहीं है। तो इसके अंदर तो बहुत चीजें हैं जो आपको सोचनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां की अच्छी है यहाँ की अच्छी है, आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से हो पाएगा, अगर हो पाएगा ना और आप बजट लगा सकते हो तो दोनों चीजें सही है, लेकिन उसके लिए आपको डीप नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। जैसे यूएसए की डिग्री यूके में यूएसए की डिग्री वर्क नहीं कर रही, those who have done, so you need to take care of this first, and if you want to be back to India then you have to give an exam for that. If you clear that, then only you will get the number here, so that you have to take into account. Yes, please, next. Sure, ma'am. Our next question is that does salary play an important role when we think about our job or our career? Don't you think? Really, it plays a very important role. My God, why doesn't play a role? It plays a role, but when you're starting, see, what matters is quality and the work you're doing. If you're doing it honestly, my dear friend, then see, salary तो gain करोगे ही एक दिन. सैलरी कैसे तुम्हें रोक लेगी? क्वालिफिकेशन है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अपने अपने प्रोफेशन पे बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हो, आंसर दे पा रहे हो, वर्क कर पा रहे हो, सोसाइटी को ढंग से व्हाट टू से influence कर पा रहे हो, persuade कर पा रहे हो, negotiate कर पा रहे हो, and you're able to do that, people will give you the money, the expenses you will talk about, but things take time. You have to start from a step. लेकिन अगर आपके पास सारी चीजें already available है, so it would be easier for you, but yes, you will be paid well. Yeah, Next, sure. please. Yeah, sure, ma'am. This is, I think, our final question. So the next question is that the person is a counselor in a college, but the person wishes to know about the scope of MEd in special education or postgrad diploma in rehabilitation psychology. So is there any scope if that person pursues it? See, why not? क्यों नहीं होगा आपका? देखिए, हमने जब 5 ब्रांचेस के बारे में 6 ब्रांचेस के बारे में मैंने बात करी है, तो मैंने स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करी थी, राइट? स्पेशल एजुकेटर्स की बात करी थी। आपने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर रखी है, आपने मास्टर्स इन एजुकेशन करी है, तो आप लेक्चरर की जॉब के लिए क्यों नहीं जाएंगे? उसके साथ आप पीएचडी करिए, क्यों नहीं है? इतने ऑप्शंस हैं। एमएड के बाद तो व्हाट वाज द ऐड ऑन विद इट, शुभम? कि एमएड, कैन यू जस्ट रिपीट वंस द Yeah, sure, सेकंड ma'am. द सेकंड पार्ट? Yeah. So the second part is that what is the scope of MEd in special education and postgraduate diploma in rehabilitation psychology if the person ओके pursues it? ओके सो एमएड इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज इम्पार्ट करेंगे टू द सोसाइटी। हमारे पास बहुत ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि निपिड है हमारे पास, हमारे पास हर क्षेत्र में है, हर कुछ एरियाज में, कुछ स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इतने स्पेशल स्कूल्स हैं हमारे पास, आप उसमें जा सकते हैं, प्रिंसिपलशिप के लिए जा सकते हैं, लेक्चररशिप के लिए जा सकते हैं। सो यू हैव लॉट मेनी ऑप्शंस। उसके साथ अगर आप डिप्लोमा भी बात करें, देखिए हमारे पास NACO है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, right? National AIDS control organizations hai, they also work and they take you or recruit you for about these diplomas in rehabilitation. तो आप उसमें भी जा सकते हैं। दोनों चीजें मैंने स्टार्टिंग में कवर करी हैं, ये सिर्फ एक एड ऑन है इसके साथ, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है। सो स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज का तो देखिए ऑप्शन इतना आजकल चल रहा है, इतना वर्क कर रहा है, और अगर कोई इंसान साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, काउंसलिंग कर रहा है, स्पेशल सर्विसेज कर रहा है, तो आप तो होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करें, आपके लिए तो ऑप्शन खुले हुए हैं, क्यों नहीं? बहुत है। बाकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मैटर करते हैं, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी सोसाइटी को अपनी नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं, दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट दैट नथिंग कुड बी डन। So you have lot many options. So thank you so much, ma'am. Our next question is that what is the scope of career of child with special needs in college, and how does Jagrati Foundation help, or could Jagrati Foundation help? Repeat, please. Career of Child with special needs in college, and how does Jagrati Foundation help? I think that the person wishes to know about how can Jagrati Foundation, or how can they contact Jagrati Foundation to help students with special needs. So how could they be helped? see, we are providing with the see, this is actually a career series, but I am happy that people are want to know more about these special needs also, and it's a pleasure to tell you that Jagriti Foundation is a
holistic foundation, and it aims on enlightening all of you with all kind of services, where we are focusing not only on mental health or career counseling, but yes, we have special educational services as well. We are trying our level best in providing the special educational services to the students who need it. अभी ये कार्य हमने दिल्ली और एनसीआर रीजन में ही शुरुआत किया है. आप सबकी दुआएं रही तो प्लीज हम बहुत जल्द इसको और जगहों पे भी लाने की कोशिश करेंगे. तो हम लोग स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर हम टेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं. हम टेस्टिंग पूरी कर कर फिर हमारा स्पेशल सेंटर है, जिसमें हम स्पेशल ट्यूटर्स हैं, जिसपे हम वर्क कर कर आपको हर तरीके की स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड विद दैट वी विल होपफुली प्रोवाइड यू, or will be coming soon with the webinar also in on special needs soon. So if any one of you are interested to join, this is our upcoming project, so you can be a part of it and hopefully will serve you the best. तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आने वाली सीरीज में दे पाएंगे. तो हम लोग स्पेशल सर्विसेज के बारे में बिल्कुल जी काम कर रहे हैं. हम हर तरीके की, आप सर्विसेज बोलिए, हेल्थ केयर और साइकोलॉजी से जुड़ी, हम हर तरीके की सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए लाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है. Oh, thank you so much, ma'am. These were all the questions we had for today. So, like, I would like to pass on the mic again to you if you have any concluding thoughts to tell us from your side Okay, of the Jagriti. thank you guys. Yeah, thank you so much, Shubham, for being the moderator and entertaining. सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय निकाला और हमें सुनने के लिए, जो हमने करियर सीरीज शुरू करी है, जिसका चौथा सेशन है. एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिस्पांस. क्वेश्चंस बच्चों के बहुत आते हैं हमारे पास जब हम ये सीरीज करते हैं, और उनको फिर हम मेल के थ्रू जवाब देते हैं. यस, वी हैव केप्ट दिस टाइम 4 o'clock वेयर आई हैव गॉट लॉट ऑफ क्वेरीज कि मैम इसको प्लीज थोड़ा ना आपको शिफ्ट करना चाहिए था. वी हैव ट्यूशंस, वी हैव दिस वर्क, हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं. I'll keep this in mind in the coming series. But thank you so much audience कि आप अपना टाइम निकाल रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि हम जितना भी आपको अपने फाउंडेशन के थ्रू, जागृति के थ्रू दे सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे. आने वाले टाइम में भी हम आपको देंगे. आप फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, जिसके अंदर आप यू नो जस्ट टेल अस व्हाट ऑल ऑप्शंस, व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू हैव, व्हाट ऑल सीरीज यू वांट फ्रॉम अस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड इन द कमिंग टाइम सून वी विल प्रोवाइड यू विद दैट. आल्सो आई वुड लाइक टू ऐड अप, कल की हमारी सीरीज आपको अब्रॉड यात्रा या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके की भी आप चाहते हैं, उस पे बेस्ड होगी. आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की गाइडलाइंस, कुछ भी चाहिए, यू विल गेट दैट फ्रॉम अस. द स्पीकर वुड बी मिस्टर प्रियांक शर्मा, हु इज राइट नाउ इन न्यूपा and he is pursuing his PhD with lot many variations he had in his career. The way we started in the first series कि career रुक एक job का नाम नहीं है, career तो चलता रहता है. He started with engineering, then moved to the social work, then moved to the counseling, then moved to the consultancy to make children learn how to go to abroad and helping them in their admissional process. And now, right now, he is in NUPA and cleared the NET exam 3 times, did his MPhil and pursuing his PhD in the last year, just waiting for the thesis to be submitted. So I think he's the right person who can guide you, who can guide your children, who can guide you as well. If you need any kind of information, he'll be the best one to serve you. How so many fluctuations, how this career has lot many variations in it, and how can you work on it. So do join us in the upcoming series tomorrow at 4 p.m. We will be happy to serve you with whatever services Jagriti Foundation can do. And thank you so much for being a part and being there in all our series. I am very much, sincerely, I pass my gratitude to all of you. That's all I can say. And over to you, Shubham. Yeah, sure, ma'am. I think that I would also like to say is that before this career series began, I was also very confused as to like what would be the dynamics of a career choice, as to like how would I be facing all of these career choices. But I think that with all the speakers we have had from Mr. Gavish Trehan, Ms. Pooja Kaushik, Ms. Hanika Kohler, and now you, and also the next series, I think that this journey has been a very memorable one for me as well, and it is helping me till now as well. So like just to give a bit more introduction about our next speaker, Mr. Priyank Sharma. He's a former consultant at EduCoach Services and founder of MentorAkin.in, and he's also done social work at Tata Institute. So like with this, I would like to conclude our webinar, and once again I'm saying that I've just sent the feedback form. So like I would really appreciate if you all could fill that form so that we can know like what all you felt about this session, and if you have any further question as well.
And if you've got any other question which you are not comfortable sharing in the feedback form, you can email us on jagrati01@gmail.com. We would be happy to take those questions as well. And if you wish to know about our future steps, seminars, or wish to conduct one or help us conduct one, so you can email us. You can also visit on our pages on Facebook, Insta, YouTube for further information and to stay updated on the latest webinars which Jagrati Foundation is organizing for you. So waiting to Thank you meet so you. much. Yeah, yeah, sure, ma'am. Thank you so much, everyone. Hope to meet you tomorrow with much more. And I hope I haven't taken much of your time. So thank you being here. And for sure, Jagrati Foundation will try best to serve you. Yeah, Thank you to all. see you in the next seminar, session number 5. See you all Sure. tomorrow. Bye. Bye-bye. Take care.